کراچی میں بارش نے جل تھل کر دی، شہر کی سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئے، عام شاہراہوں پر ٹریفک جام، وقفے وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ نیو کراچی، نارتھ کراچی، گلشن حدید، صدر آئی چندری گڑھ روڈ، بنس روڈ، ٹاور، ایئرپورٹ، ملیر ہالٹ سمیت کینٹ، شاہ فیصل کالونی، گلشن جمال، راشد منہاس روڈ، گلستان جوہر، گلشن اقبال، کارساز، ٹیپو سلطان روڈ اور کلفٹن میں موسلادھار بارش۔ شہر قائد میں بارش کے باعث ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم، شہریوں کو مشکلات۔ صدر میں ایٹریم مال کے قریب درخت گر گیا، سڑک پر پڑے گڑھوں میں جمع پانی موٹر سائیکل، رکشے اور دیگر گاڑیوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا، مختلف چوراہوں پر ٹریفک جام۔ بارش کے بعد کے الیکٹرک کی بہانے بازیاں بڑھ گئیں، شہر کے مختلف علاقوں میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہری سخت پریشان، کہتے ہیں کہ بجلی آتی کم ہے جاتی زیادہ ہے، بل اتنے زیادہ آتے ہیں کہ راشن کے پیسے بھی نہیں بچتے۔ نشیبی علاقوں اور اہم سڑکوں سے برساتی پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت، کہا مانسون بارشوں کے دوران عوام کی پھر بھرپور رہنمائی کی جائے، سندھ کے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تمام کمشنرز اپنی ڈویژنز کے ہر ضلع کا دورہ کریں اور ہدایات جاری کریں۔ سندھ میں بارشوں کے پیش نظر تمام محکموں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، تمام بلدیاتی اداروں اور محکمہ صحت میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہدایت، پی ڈی ایم اے کو ہنگامی آلات، مشینری، ڈی واٹرنگ پمپس اور عملے کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم۔ چیف سیکرٹری سندھ کہتے ہیں کہ شہری علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ لاہور میں بارش کا 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، سڑکیں تالاب میں تبدیل، نشیبی علاقے زرعہ، پانی گھروں اور اسپتالوں میں داخل، رین ایمرجنسی نافذ، تمام دفاتر اور تعلیمی ادارے بند، محکمہ موسمیات کے مطابق 334 ملی میٹر بارش نے پورا شہر ڈبو دیا، ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ 337 ملی میٹر بارش ہوئی، نشتر ٹاؤن پر 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ، مانسون بارشوں کا سلسلہ 6 اگست تک جاری رہے گا۔ پنجاب بھر میں شدید بارشیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے انتظامی افسران اور واسع حکام کو فیلڈ میں پہنچنے کی ہدایت، بارش کے پانی کی جلد نکاسی کا حکم، نکاسیاب کے لیے تمام وسائل بروکار لانے کی ہدایت، کہتی ہیں کہ گلی محلوں اور سڑکوں سے بارش کے پانی کی نکاسی کا آپریشن جلد مکمل کیا جائے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے، پارا چنار پر ایرانی بیان غیر ضروری ہے، کسی بھی انسان کا قتل ناقابل برداشت ہے، پارا چنار پر ایرانی بیان سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے منگل کو تہران کا دورہ کیا، دولت مشترکہ کی سیکریٹری جنرل کی اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی، ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خطرات میں اضافے کا انکشاف، اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ جاری، طالبان القاعدہ فتنہ الخارج کے بڑھتے ہوئے خدشے کا بھی اظہار، پاکستان کو فتنہ الخارج اور افغانستان میں پناہ لینے والے دیگر عسکریت پسندوں سے خطرات لاحق ہیں۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی تہران میں نماز جنازہ ادا، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی، مختلف مکاتب فکر کے افراد اور خواتین کی بھی شرکت، میت جمعرات کو قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل کی جائے گی، نماز جنازہ جمعے کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ادا کی جائے گی، تدفین لوسیل کے قبرستان میں ہوگی، ایران میں 3 روزہ سوگ، انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا رہا ہے۔ پاکستان کی اسرائیل کی جانب سے لبنان کی علاقائی خود مختاری پر حملے کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے خود مختار ریاستوں کے اندر شہریوں پر حملہ بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہے، اقوام متحدہ بین الاقوامی قوانین پر عمل کرائے اور فلسطینیوں پر ظلم بند کروائے۔
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, चीन, रूस, अल्जेरिया की हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत, मशरिक़ वस्ता कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर जोर। नायब जापानी सफ़ीर का कहना है मशरिक़ वस्ता जंग के दुहाने पर पहुँच गया। चीनी सफ़ीर का कहना था गजा जंग बंदी में नाकामी खित्ते में कशीदगी का सबब है। बरतानवी सफ़ीर ने कहा अमन जंग से नहीं मुज़ाकरात के जरिए होनी चाहिए। ईरानी सफ़ीर कहते हैं जवाब देने का हक रखता है। आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दें। ज़िला इंतज़ामिया इजाज़त इसलिए नहीं देती कि शाबाश मिल जाए। इजाज़त न देकर कहते हैं कि देखा हमने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रिमांड। पीटीआई को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। स्टेट काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वकील पीटीआई ने अदालत को बताया कि हमारी दरख्वास्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की है, जलसे की नहीं। जलसे की इजाज़त का केस चीफ जस्टिस की अदालत में है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर। अदालत का रऊफ हसन को पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे से रिहा करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील। बानी ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के केस सुनने पर एतराज़ किया था। 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत ने समाअत की थी। पीटीआई अपना तर्ज अमल बदले, कौम और इदारों से मुआफ़ी मांगे। पीटीआई मुआफ़ी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशान नहीं। पीटीआई पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमला आवर है। फौज ने दो टोक कहा है वो सियासत से अलहदा रहना चाहते हैं। अगर अमेरिका में 9 मई होता तो पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होती। बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार हैं। बानी पीटीआई को मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। पीटीआई वाले कभी गिरबान पकड़ते हैं तो कभी पाँव पकड़ते हैं। बानी पीटीआई न्यूट्रल को जानवर कहते हैं तो कभी ये मुतालबा करते रहे कि न्यूट्रल हो जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि हम मुल्क तोड़ने और आग लगाने वालों को एनआरओ नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोगों को उकसा कर 9 मई के वाक़यात कराए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो जीएचक्यू पर हमला करें। इंतशारी टोले ने शौदा और उनके ख़ानदानों का मजाक उड़ाया। कुछ भी कर लें, जाली हुकूमत का आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैंडेट चोर सरकार पार्लियामेंट में कानून साजी के साथ मजाक करना बंद करे। कौम जानती है जाली वज़ीर कानून किसके इशारों पर गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं। जाली हुकूमत की जाली तरामीम वापस इनके मुंह पर ही लगेगी। जाली हुक्मरान अपनी हुकूमत बचाने के लिए आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहत नागुज़ीर हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को आगे आना होगा। मुआशी इस्लाहत से ही मुल्क तरक्की करेगा। नुकसान से चलने वाले हुकूमत के मिल्कियती इदारों की निजकारी करना होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। करेंसी मिसमैच की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुँचा। मायूसी फैलाने वाले सुन ले, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कौमी मफाद में आपको सड़कों की बंदिश को ख़त्म करना होगा। हमें तरक्की के सफ़र में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स को ख़त्म करना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात वक्त का तकाजा है। नेपरा का पावर सेक्टर में सरमायाकारी के मुआहदों के खिलाफ मनफी मुहिम पर तशवीश का इजहार।
कहना है कि मुआहदों पर ज़बरदस्ती नज़रसानी नहीं कर सकते वरना मुस्तक़बिल में उसके असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान में बहुत से मौजूदा मसाइल मुआहदे के ज़वाबित के ख़िलाफ़ मुहिमजोही की वजह से हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने उभरती हुई नई टेक्नोलॉजीज़ को नहीं अपनाया तो उनका वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। नेपरा का इंतबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारा बुनियादी एजेंडा ही IPPs को दुरुस्त करना है। IPPs के किरदार पर सबके सवालात हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सब हुकूमतों में IPPs के मुआहदे हुए, हमने गर्दिशी कर्ज में 2600 अरब रुपए अदा करने हैं। बिजली केबल और लोड शेडिंग पूरी कौम का मसला है। मौशी इस्लाहात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का तरजीही एजेंडा है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की मुस्तफ़ा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि MQM की क़यादत से बातचीत में बिजली के मामलात ज़ेर गौर आए। डिस्कोर्स को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। हुकूमती मुज़ाकराती टीम हमारे मुतालबात से भाग रही है। IPPs वाला मामला हल होने तक धरना ख़त्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 7वें रोज़ धरने से खिताब। कहा, जमात इस्लामी जो मुतालबात कर रही है वो तमाम हकीकत पर मबनी है। हमसे बिजली की कीमत वसूल करें। जो बिजली बन नहीं रही उसकी कीमत भी हमसे वसूल की जाती है। IPPs मुआहदों की वजह से हज़ारों अरब रुपए लूट लिए गए। जमात इस्लामी 3 अगस्त की शाम को गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। जमात इस्लामी ने कराची में एहतजाजी धरने की नई तारीख का ऐलान कर दिया। तर्जमान जमात इस्लामी कराची के मुताबिक धरने का आगाज़ जामा मस्जिद खजरा से शाम 5 बजे होगा। गवर्नर हाउस पर धरना रावलपिंडी धरने का तसलसल है। पंजाब के शहर टेक्सला में 2 बच्चों के बाप ने बिजली का बिल अदा न करने पर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। बिजली का बिल अदा न करने पर शहरी की अपने भाइयों से तल्ख कलामी, जो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। मुतवफ़ी 4 माह से बेरोजगार था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी। मुल्क भर में बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्रर करदा तारीख में 10 दिन की तौसीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पावर डिवीज़न ने बिजली तकसीम कार कंपनियों को अहकाम जारी कर दिए। जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी मुकर्रर तारीख में 10 दिन की तौसीह की गई है। वज़ीर आज़म ने बिजली सार्फिन की मुश्किलात के पेश नज़र ये हिदायत जारी की। सदर आसिफ अली जरदारी से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स का वफ्द आज मुलाकात करेगा। वफ्द सदर मुमलिकत को कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात और दरपेश मसाइल के बारे में आगाह करेगा। गल्ला मंडियों के ताजिर भी विद होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ सरगर्म हो गए। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में होलसेल ग्रोसर्स की जानिब से शटर डाउन हड़ताल का दूसरा रोज़। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गल्ला मंडियों की हड़ताल। अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी मुतासर होने का खदशा। मुतालबात तस्लीम न किए गए तो 6 अगस्त से नए लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात के लिए दरखास्त पर समात। अदालत ने कोट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट से 5 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली। समात जस्टिस अनवारुल हक ने साबिक MPA मोहम्मद अब्बास की दरखास्त पर की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अगवा बराए तबान और गैर कानूनी असलहा बरामदगी के मुकदमात की समात। अदम सबूत के बिना पर मुत्तहदा के 4 कारकुनान पर ही वकील सफाई ने दलाल में इस्तदा की कि झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात के तहत केस बनाया गया। प्रोसिक्यूशन के पास इल्ज़ामात साबित करने के लिए सबूत भी नहीं हैं। गवाहान के बयानात में तजाद है, लिहाजा उन्हें बरी किया जाए। इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट के नताइज में रद्दोबदल और जालसाजी करने का केस सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने मुल्जिमान की जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। जब तक सिंध हाई कोर्ट से फैसला नहीं आता तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए। मुल्जिमों के वकील की अदालत से इस्तदा। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुल्जिमान ने 2022 और 2023 के नताइज में रद्दोबदल, बेज़ाब्तगियों और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से साबिक सेनेटर डॉक्टर आसिम हुसैन की मुलाकात। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी कहते हैं कि सबको मिलकर मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान को दरपेश मौशी सूरत हाल कौमी यकजहती के मुतकाज़ी है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि सबको इसी विजन से मुल्क और कौम की खिदमत करना होगी। अब हमारे सरकारी स्कूलों का तालीमी मयार बेहतर होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के हवाले से इजलास। वज़ीर आला ने टेक्स्ट किताबों की तकसीम 14 अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं असातिज़ा और तालिब इल्म का तनासुब ठीक है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। सिंध हुकूमत असातिज़ा को अच्छी तनख्वाह देती है। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने ब्रीफिंग दी कि तालीमी मयार को बेहतर करने के लिए इंस्पेक्शन निज़ाम नाफिज किया जाएगा। कराची में कमर्शियल इमारतों के पार्किंग एरिया के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पार्किंग एरिया के नाजायज़ इस्तेमाल वाली इमारतों की रिपोर्ट तैयार कर ली। 5 न्यूज़ ने SBCA की तैयार करदा रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक शहर की 31 कमर्शियल इमारतों में पार्किंग एरिया मौजूद, लेकिन कमर्शियल और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल जारी है। 20 इमारतों में पार्किंग एरिया दुकानों, गोदामों और दीगर कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। 3 इमारतों में पार्किंग एरिया को मसाजिद में तब्दील कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने मुतालिका महकमों को तलब कर लिया। कमिश्नर हाउस में मुतालिका इदारे कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग देंगे। कराची के इलाके अल-फलाह शमसी सोसाइटी के पेट्रोल पंप पर 20 लाख रुपए की डकैती का मामला। पेट्रोल पंप पर 2 मरतबा डकैती करवाने वाले साबिक मुलाजिम निकले। पुलिस ने डकैती में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान डकैती के दौरान पुलिस एहलकार का असलहा भी लेकर फरार हुए थे। मुल्जिमान ने 20 जुलाई को पेट्रोल पंप का कैश लूटा था। असलहा और 2 लाख रुपए कैश बरामद। साबिक मुलाजिमीन डकैत गिरोह को भारी कैश की मुखबरी करते थे। मुल्जिमान ने 6 माह कबल भी पेट्रोल पंप से 13,60,000 कैश छीना था। कराची के इलाके करंगी और लियारी में एक्साइज नारकोटिक्स की कार्रवाई। मंशियात फरोश गिरफ्तार, मंशियात बरामद। करंगी मेहरान टाउन से 2 मंशियात फरोश पकड़े गए। निशानदही पर लियारी से 1 मंशियात फरोश गिरफ्तार किया गया। बरामद होने वाली मोटरसाइकिल एक्साइज नारकोटिक्स ने तहवील में ले ली। सऊदी अरब में हज के लिए गैर कानूनी तौर पर आने वालों को रोकने के लिए स्मार्ट सिस्टम मंसूबा ज़ेर गौर। सऊदी मीडिया के मुताबिक नए सिस्टम में आज़मीन के कवायद और रिहायशी उमूर की मालूमात अपडेट होंगी। आज़मीन को स्मार्ट कार्ड्स दिए जाएंगे जिन पर उनकी मुकम्मल मालूमात होंगी। स्मार्ट कैमरों से हुज्जाज की नक्लो हरकत और मुकम्मल मालूमात महफूज की जाएंगी। मारूफ कॉमेडियन सरदार कमाल की तदफीन कुछ देर बाद होगी। नमाज जनाजा आज मदनी मस्जिद बटाला कॉलोनी में अदा की जाएगी। मैयत फैसलाबाद में आबाई इलाके शरीफपुरा पहुंचा दी गई। मैयत घर पहुंचने पर रिक्कत आमेज मनासिर, मद्दाहों की आंखें नम हो गईं। ICC की टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट ने केन विलियमसन से पहली पोजीशन छीन ली। केन विलियमसन दूसरी पोजीशन पर चले गए। पाकिस्तान के बाबर आजम की भी एक दर्जा तरक्की, तीसरी पोजीशन पर आ गए। न्यूजीलैंड के डैरेन मिचेल का 4था नंबर टेस्ट बॉलर्स में। भारत के एशून का पहली पोजीशन पर कब्जा। टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भारत के रविंद्र जडेजा की पहली पोजीशन बरकरार। और पेरिस ओलंपिक्स के 5वें रोज चीन ने मेडल्स टेबल पर कब्जा जमा लिया। चीन 9 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। चीनी स्विमर ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद